Hi, the question is the element thorium. This is given. Mass number is 248. Has mean life is this 10 to the power 13 seconds. Its primary decay modes are a spontaneous fission of alpha decay and the former with the probability of 8% and the latter with the probability of 92%. Each fission releases 200 mega electron volt energy. The mass involved in the decay are as follows. Mass of the thorium is given this 248.07 2220 U, and U is the atomic mass unit. And this mass number is given 244.064100 U. And the mass of the helium given in atomic mass unit is this 4.002603 U, atomic mass unit. Calculate the power output of the sample of 10 to the power 20 thorium atoms. And it is also given 1 U equal to 931 mega electron volt per CS square. Clear? Now we have to find the power output. Now, as we know, total energy released equal to total energy, we can write total energy released is equal to energy released in the fission process, energy released in fission process, plus energy released in alpha decay process plus energy release in alpha decay process. Clear? So energy release in the fission process, we can write energy release in the fission process is equal to NF into 200 plus NA into 0.005517 into 931. Clear? This is the mass defect of this. Now this is equal to 8 by 100 because 8% of this in this questions probability of 8% initially and later probability is 92%. So according to this we can write 8 divided by 100 into 10 to the power 20 because sample has this 10 to the power 20 cm thorium. So this we can write into 200 into 200. Clear? Plus we can write plus 92%, 92 divided by 100 into 10 to the power 22 into 0.0055517 into 931. Clear? So after solving we will get 20.725 into 10 to the power 20 mega electron volt. Energy is equal to this. Now we have to find the power. As we know, power is equal to E and divided by T. Clear? So E is given 20.725 into 10 to the power 20 into we can write
1 point mega electron volt. So 10 to the power 6, and we have to convert it into joules. So we have to multiply 1.6 into 10 to the power minus 19 joule and divided by time is given, and this time is 10 to the power 3. And after solving, you will get power equal to 3.3 into 10 to the power minus 5 watt. So finally we can write power equal to, this power equal to 3.3 into 10 to the power minus 5 watt. This is the answer for this question. Hope this answered the question. Thank you. इस क्वेश्चन में बोल रखा है एक न्यूक्लियस एक्स है जो कि इनिशियली रेस्ट में है, अल्फा डीके हो रहा है उसका। एग्जाम्पल ये रिएक्शन दे रखा है एक्स न्यूक्लियाई जिसका मास नंबर ए है, एटॉमिक नंबर 92 है, वो डीके हो रहा है अल्फा डीके में, तो वाई न्यूक्लियाई फॉर्म कर रहा है। वाई न्यूक्लियाई का मास नंबर 228 है, एटॉमिक नंबर जेड है, और एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। तो ये हमें पता है अल्फा पार्टिकल बेसिकली होता है क्या, हमारे पास हीलियम 24 होता है। तो यहाँ से हम एटॉमिक नंबर, मास नंबर और एटॉमिक नंबर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास नंबर यदि एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करें तो ए इस साइड है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में क्या है, प्रोडक्ट साइड में 228 प्लस 4, ये हमारे पास ए की एटॉम मास नंबर जो आ जाएगी, वहाँ से ये कितना आ जाएगा 232। तो ए का जो हमारे पास मास नंबर है वो कितना आ गया 232 आया, 228 प्लस 4। इसी तरीके से y का एटॉमिक नंबर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 92 रिएक्टेंट साइड में है एटॉमिक नंबर, प्रोडक्ट साइड में z है, प्लस हीलियम के करस्पॉन्डिंग कितना है 2 है। यहाँ से जो z निकल करके आएगा हमारे पास 92 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा 90। तो z हमारे पास y का एटॉमिक नंबर कितना आ गया 90 आ गया, और x के करस्पॉन्डिंग मास नंबर जो है वो 232 आया। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया। सेकेंड पार्ट में बोल रखा है द अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूसेस इन द एबव प्रोसेस इज फाउंड टू मूव इन अ सर्कुलर ट्रैक। जो भी अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, ये एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, जिसकी रेडियस जो दे रखा है वो 0.1 mm है, और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 3 टेस्ला में मूव कर रहा है। पूछ रहा है फाइंड द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो एनर्जी रिलीज हमें निकालनी है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है। जब सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज QVV जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के, mv²/r के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम v कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, वो क्या आ जाएगा हमारे पास QRB डिवाइडेड बाई m। अब q जो मास है वो हमारे पास कितना है, मास, अरे q चार्ज है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना है, ऑफ कोर्स 2 इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो 2 इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। मैग्नेटिक फील्ड कितना उस रीजन में, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 3 टेस्ला, तो ये 3 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड। आर सर्कुलर ट्रैक की रेडियस कितना है 0.1 मीटर है, 0.11 मीटर, डिवाइडेड बाई मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल यहाँ भी दे रखा होगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4.003 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 4.003। तो यहाँ से हम वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो मास दे रखा है अल्फा पार्टिकल का वो किस में दे रखा है, एटॉमिक मास यूनिट में। यदि केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट आएगा इसका 1.6 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास वेलोसिटी निकल जाएगी अल्फा पार्टिकल की। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है क्या निकालना है, एनर्जी निकालना, फाइंड द एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यदि अप्लाई करेंगे तो ये एक्स न्यूक्लियाई क्या है, रेस्ट में है, तो इसके करस्पॉन्डिंग मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा। वाई न्यूक्लियाई के करस्पॉन्डिंग मोमेंटम क्या होगा, my/vy। इसी तरीके से अल्फा पार्टिकल रिएक्टेंट का मोमेंटम 0 कब होगा, जब दोनों वाई और अल्फा पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे, तभी तो रिएक्टेंट का मोमेंटम 0 होगा। नेट मोमेंटम 0 कब होगा,
प्रोडक्ट का, जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसलिए यहाँ एक निगेटिव साइन होगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ से हम वेलोसिटी ऑफ वाई पार्टिकल, वाई न्यूक्लियाई हम क्या निकाल सकते हैं, वो निकल जाएगा हमारे पास मास ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई मास ऑफ वाई इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा। यहाँ से वेलोसिटी निकल गया हमारे पास। अब क्या निकालना है यहाँ, फाइंड द एनर्जी रिलीज। तो एनर्जी रिलीज्ड हम कैसे निकाल लेंगे, तो जो एनर्जी रिलीज्ड होगा वो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई प्लस अल्फा हो जाएगा। रीज़न क्या है इसके पीछे, इसका काइनेटिक एनर्जी एक्स न्यूक्लियाई का क्या है, 0 है, और तो इन दोनों के पास आफ्टर डीके क्या होगा, इसके पास भी कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी, इसके पास भी कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो इनका सम जो होगा काइनेटिक एनर्जी का वही रिलीज्ड एनर्जी हो जाएगा हमारे पास। तो इनका सम ऑफ एनर्जीज क्या आ जाएगा हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वाई वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ, ये अल्फा पार्टिकल है यहाँ पे, तो हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। अब हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है कि वी वाई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, तो वी वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ हाफ एम वाई, वी वाई की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, एम अल्फा डिवाइडेड बाई एम वाई वी अल्फा होल स्क्वायर प्लस हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास हाफ एम अल्फा क्या आ जाएगा, एम अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, तो हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा एम अल्फा एम वाई प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल रिलीज्ड एनर्जी। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट क्या कर देंगे, हाफ तो हाफ है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे मास ऑफ अल्फा पार्टिकल गिवन है 4.003, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.003। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये जो मास दिया हुआ है वो एटॉमिक मास यूनिट में है, तो अल्टीमेटली हमें इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल अभी हमने जस्ट कैलकुलेट करा है, वो हमारे पास कितना है 1.6 इंटू 10⁻7, तो 1.6 इंटू 10⁻7 इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, मास ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई मास ऑफ वाई, तो अल्फा करेंगे तो 4.003 और मास ऑफ वाई न्यूक्लियाई करेंगे तो वाई न्यूक्लियाई का भी मास दे रखा होगा यहाँ पे 228.03, तो ये 228.03 प्लस 1 कर लेंगे। ये जो मास था, बाकी ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, मास बाई मास एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। वेलोसिटी हमने एसआई यूनिट में लिखा है, मास जो हमने लिखा है वो हमने एटॉमिक मास यूनिट में रखा है, तो इसको हम क्या कन्वर्ट कर देंगे, इस एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे, तो फाइनली जो एनर्जी हमारे पास निकल करके आएगी वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 5.34 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे क्या आ गई, टोटल एनर्जी आ गई, एनर्जी रिलीज्ड आ गई। इसी तरीके से हम एनर्जी रिलीज्ड के इक्विवेलेंट का मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पूछ रहा है फाइंड द एनर्जी रिलीज, तो हो गया बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियाई। तो एक्स की यदि बाइंडिंग एनर्जी हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे स्पेस है हमारे पास, यहाँ पे हम एक्स की बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। रिएक्शन हमारे पास क्या था, एक्स A92 मीन्स एक्स का जो मास नंबर था वो हमारे पास था 232 और जो एटॉमिक नंबर था वो कितना था, 92 था। तो एटॉमिक नंबर कितना था, 92 था। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ऑफ कोर्स मास चाहिए होगा एक्स का, तो अभी एक्स का मास हमें पता नहीं है। कैसे करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू मास ऑफ कितने प्रोटॉन है इसमें, 92 प्रोटॉन है, तो 92 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा हमारे पास 232 माइनस 92, तो ये कर देंगे निगेटिव, माइनस करेंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 0 और यहाँ से 4 यहाँ से 1 मीन्स 140 न्यूट्रॉन्स आ गए। 140 प्लस 92 करके देखें तो 232 आएगा, 140 न्यूट्रॉन आएगा माइनस मास ऑफ एक्स न्यूक्लियाई आ जाएगा। तो यहाँ प्रोटॉन का भी मास पता है, न्यूट्रॉन का भी मास पता है, एक्स का मास हमें फाइंड आउट करना है। तो एक्स का मास हम कैसे फाइंड आउट करेंगे,
यहाँ देखिए एनर्जी ये निकल गया है, एनर्जी रिलीज निकल गया है, तो इसके करस्पॉन्डिंग मास जो निकालेंगे वो कितना हो जाएगा हमारे पास। हर मास का E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर क्या बोलता है कि हर एनर्जी के करस्पॉन्डिंग मास होता है और हर मास के करस्पॉन्डिंग एनर्जी होता है। तो इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो मास होगा वो हमारे पास 5.34 डिवाइडेड बाई 931.5 कर लेंगे, तो इतना एएमयू में हमारे पास मास निकल जाएगा, जो कि आई थिंक 0.005 के आसपास आएगा। तो ये आ गया 0.005, इतना एएमयू मास आ गया। अब हमें मास निकालना, मास ऑफ एक्स, तो मास ऑफ एक्स देखो कैसे निकलेगा, एक्स वाई और हीलियम है, एक्स जो है वो डीके हो रहा है वाई न्यूक्लियाई में विथ इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, यही हमारे पास सिचुएशन है। तो मास ऑफ एक्स कैसे निकलेगा, मास एनर्जी मास इक्विवेलेंस से मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस इसमें जो एनर्जी रिलीज्ड हो रही है उसके करस्पॉन्डिंग का मास। तो मास ऑफ वाई न्यूक्लियाई हमें गिवन है, वाई का हमारे पास जो मास है 228.03 है, तो ये हमारे पास है 228.03। अल्फा पार्टिकल का जो हमारे पास मास गिवन है वो 4.003 गिवन है, तो वो हमारे पास है 4.003 प्लस यहाँ जो मास एनर्जी के इक्विवेलेंट मास है वो क्या है 0.005। तीनों को सम करेंगे तो हमारे पास निकल करके आएगा 5 और 3 8, तो यहाँ 8 आ गया, 3 और 0 प्लस 0 मीन्स 3 आ गया 0.38। यहाँ ऑफ कोर्स यहाँ से आ गया 4 प्लस 8, 8 और 4 क्या हो जाएगा 12, 2 कैरी 1, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, मीन्स 232.08 आ जाएगा। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, मास ऑफ एक्स 232.038। इतना एटॉमिक मास यूनिट हमारा क्या आ गया एक्स का मास आ गया। अब हम क्या कर लेंगे, बाइंडिंग एनर्जी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए 92 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना दे रखा है, ये प्रोटॉन का मास है 1.008, मीन्स 92 इंटू 1.008 प्लस 140 मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना दे रखा है, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो दे रखा है हमारे पास 1.009 दे रखा है, तो ये 1.009 यहाँ आ गया, माइनस मास ऑफ एक्स, मास ऑफ एक्स हमने जस्ट कैलकुलेट करा है 232.038, मीन्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 232.038, तो ये हमारा बाइंडिंग एनर्जी निकल करके आएगा। ये एटॉमिक मास यूनिट में आएगा, इसको 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल करके बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा, और ये जो बाइंडिंग एनर्जी आएगा 1823 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी आएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें एक बाइंडिंग एनर्जी पूछा गया था और एक क्या पूछा गया था, एनर्जी रिलीज्ड, तो दोनों हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, एनर्जी रिलीज्ड एंड बाइंडिंग एनर्जी। Hello. The question is, it is proposed to use a nuclear fusion reaction in a nuclear reactor of 200 megawatt rating. If the energy from the above reaction is used with a 25% efficiency in a reactor, how many grams of deuterium fuel will be needed per day? The masses of deuterium and helium are given as 2.01041 and 4.0026 atomic mass unit. Okay, so in this question we have to find the value in grams of deuterium needed per day. So first of all we can calculate the value of mass defect, because mass of reactants and products are given. So if we represent the mass defect by mf, so the value of mf will be equal to mass of reactants minus mass of product. Okay, so the mass of reactants is given 2.0141 minus mass of product is 4.0026. When we solve this equation, we will get the value of mass defect, that is mf is equal to 0.025
2.56 atomic mass unit. Okay. Now we can calculate the value of energy released by the formula is equal to mf into c square, or we can say 0.0256 into 931.48 MeV into c square upon c square, or we can say, if we represent the energy released by the sign delta E, then the value of delta E is equal to 23.85 MeV. Now if we calculate this value in joule, we will get the value in joule by multiplying this value into 1.6 into 10 power minus 13. So the value of delta E is equals to 23.85 into 1.6 into 10 to the power minus 13, and we will get the value of energy released in joule. So the value is 3.82 into 10 to the power minus 12 joule. Now from the question is given that only 25% efficiency, that means 25% energy is used for nuclear reactor. So the energy available to nuclear reactor is energy available to nuclear reactor. This will be equal to the 25% of delta E. It means this is the energy released, and from the question that only 25% of energy is used, so the energy available to nuclear reactor is 25 by 100 into 3.82 into 10 to the power minus 12. When we solve this, we will get the value of energy available to nuclear reactor is equal to 9.55. Its value is 9.55 into 10 to the power minus 13 joule. Now we can calculate the energy required in 1 day. So the energy required per day will be equal to the product of power into time, and in the numerical the power is given 200 megawatt. We can write this 200 into 10 to the power 6 because power is in megawatt, into for 1 day 24 into 3600. So we will get the required energy. If we represent this by E required, this will be equal to 1.728 into 10 to the power 13 joule. Now we can calculate the total number of deuterons needed. Total number of deuterons, that is N, needed will be equal to the ratio of energy required upon energy released by 1 deuterium. Energy released by 1 deuterium. Okay, so we have already calculated the energy released by 2 deuterium, that is 9.55 into 10 power minus 13. So for 1 deuterium, first of all, energy required is given by 1.728 into 10 to the power 13 divided by energy released by 1 deuterium, and energy released by 2 deuterium we have already calculated. The value is 9.55 into 10 to the power minus 13. This is by 2, so energy released by 1 deuterium will be the half of this. Now when we solve this, the value of N will be equal to 0.362 into 10 to the power 26. Okay,
Now we can calculate the moles of deuterium, that is moles of deuteriums will be equal to N upon Na, where Na is the Avogadro number, so its value is 0.362 into 10 to the power 26 upon the value of Na is 6.02 into 10 to the power 23. When we solve this, we will get the value of moles of deuterium. Okay, now we have to calculate in grams of deuterium. So mass of deuterium needed, mass of deuterons in grams needed will be equal to moles required, moles of deuterons required into molar mass, Okay, so when we put these values, we will get the mass of deuterons in grams required, that will be equal to 0.362 into 10 to the power 26 upon 6.02 into 10 to the power 23 into the molar mass is 2. So the required answer is 120.27 grams. Okay, this is your final.